بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سعودیہ میں ایک عربی کے گھر کام کرتا جس کی 2 بیویاں تھیں۔ جس رات عربی گھر پر نہیں ہوتا تو اس رات دونوں بیویوں کے کمرے سے جانور کی آوازیں آتی۔ ایک دن میں غلطی سے اس کی بیوی کے کمرے میں چلا گیا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کے 2 بجے تھے جب اچانک ایک عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ پل تو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر میں نے دھیان لگایا تو ایسے لگا جیسے کوئی جانور چیخ رہا ہو۔ میں گھبرا کر اپنے کوارٹر سے باہر آ گیا۔ جانور کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر مین گیٹ کھولا اور باہر جھانکا، مگر باہر تو سناٹا تھا اور دور دور تک کوئی جانور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ آواز گھر کے باہر سے نہیں اندر سے آ رہی تھی۔ اس احساس کے ہوتے ہی خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ گھر کے اندر جانور کیسے گھس گئے۔ دروازہ تو میرے کھولنے سے پہلے سے ہی بند تھا، پھر وہ جانور گھر کے اندر گئے کیسے؟ میں جلدی سے اندر کی طرف بھاگا۔ گھر کے اندر بھی کوئی جانور مجھے دکھائی نہیں دیا تو میں نے حیرت سے سوچا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ مالک گھر پر نہیں تھا اور وہ اپنی دونوں بیویوں اور اس گھر کی ذمہ داری ڈال کر گیا تھا۔ اب میرے ہوتے ہوئے گھر میں جانور گھس آئے ہیں تو مالک کی واپسی کے بعد میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر کا جائزہ لیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد احساس ہوا کہ آواز اوپر سے آ رہی ہے اور اس کا مطلب تھا کہ وہ خطرناک قسم کے جانور اوپر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ میں قدم قدم پھونک پھونک کر اوپر بڑھا رہا تھا، مگر یہ کیا کہ اوپر بھی کوئی جانور نہیں تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ اس چھت پر جو 2 کمرے بنے ہوئے تھے، آواز بھی انہی کمروں سے آ رہی تھی، اور یہ کمرے کسی اور کے نہیں بلکہ صاحب کی دونوں بیویوں کے کمرے تھے۔ میں نے گھبرا کر دستک دی، مگر دونوں میں سے کسی کا جواب نہیں آیا۔ مایوس ہو کر واپس آ گیا، اپنے کوارٹر میں آ کر لیٹ گیا، مگر ساری رات دونوں مالکنوں کے کمرے سے جانوروں کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ صبح کے قریب آواز بند ہوئی تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو رات کا سارا منظر یاد آیا۔ میں فوراً بھاگ کر پہلے والی مالکن کے پاس گیا اور پوچھا، مالکن، کل رات آپ کے کمرے سے جانور کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی جانور بول رہا ہو۔ مالکن نے مجھے ایسے حیرت سے دیکھا جیسے میں نے کوئی انہونی بات سنا دی ہو۔ مجھے کہنے لگی، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، بھلا میرے کمرے میں کہاں سے جانور آئے گا؟ تم نے نیند میں سنا ہوگا۔ میں بھاگا بھاگا دوسرے نمبر والی مالکن کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا تو اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا، تمہیں میں پاگل لگتی ہوں جو یوں رات کو اپنے کمرے میں جانور لے کر جاؤں گی؟ اس بیگم صاحبہ نے بھی مجھے ہی جھوٹا ثابت کیا۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا سچ میں ایسا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے جانوروں کے بولنے کی آواز سنی تھی، مگر دونوں مالکنیں انکار کر رہی تھیں اور ماننے سے ہی منع کر دیا کہ ایسا ویسا کچھ تھا۔ سارا دن میں اپنے آپ کے ساتھ الجھتا رہا کہ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ۔ شام میں مالک واپس آ گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کی رات جاگ کر پتہ لگاؤں گا کہ واقعی وہ آواز آتی ہے یا صرف میرا وہم ہے۔ میں ساری رات جاگتا رہا مگر ایسی ویسی کوئی آواز نہ آئی تو میں اپنے آپ میں شرمندہ ہو گیا کہ واقعی صاحب کی دونوں بیویاں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ مجھے ہی وہم ہوا تھا۔ پورا ہفتہ اچھے سے گزر گیا، مگر عین پھر اسی دن میرا عربی مالک کہیں جانے کو تیار ہو گیا اور جانے سے پہلے مجھے کہا کہ میں گھر اور اس کی بیویوں کا اچھے سے خیال رکھوں۔ میں نے سارا دن اپنے حصے کا کام کیا اور رات کو جب میں تھک کر چور ہو کر سونے لیٹ گیا تو پھر سے آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ وجہ وہی تھی پچھلے ہفتے والی، ایسا شور ہو رہا تھا جیسے جانور کر رہے ہوں۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا، یہ وہم نہیں تھا، وہ آوازیں سچ میں آ رہی تھیں۔ میں اب کی بار باہر دیکھنے کی بجائے سیدھا ان کے کمروں کے پاس آ گیا۔ عجیب بات تھی کہ ایک نہیں بلکہ دونوں کمروں سے آوازیں آ رہی تھیں اور ان آوازوں سے لگتا تھا کہ جیسے بہت سارے جانور مل کر بین کر رہے ہوں۔ میں کسی صورت اسے اپنے کانوں کا دھوکہ نہیں مان سکتا تھا۔ میں نے دھڑا دھڑ دروازے پر دستک دی مگر بڑی مالکن نے دروازہ نہ کھولا۔ مایوس ہو کر چھوٹی مالکن کے کمرے کا رخ کیا مگر وہاں بھی یہی کچھ بھگتنا پڑا، کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ میں کیا کرتا؟ میں نے مایوس ہو کر صاحب کو کال ملا دی تاکہ یہ سب ان کو بتا سکوں، مگر اس سے پہلے میں ان کو کال کرتا ایک دم چونک گیا۔ میرے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ مجھے ایک چیخ بھی سنائی دی، شاید دونوں مالکنوں میں سے
कोई चीखा था। मैं भागकर उनके कमरे में गया और फिर से दस्तक देने लगा, मगर कोई फायदा न हुआ। मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गया और सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है। मैंने सुबह उनसे पूछा तो दोनों सिरे से ही मुकर गईं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैंने नोट किया तो मुझे मालूम हुआ कि जिस दिन मालिक घर पर होते हैं उस दिन ऐसा कुछ नहीं होता, मगर जिस दिन मालिक घर पर नहीं होते तो उनकी बीवियों के कमरे से जानवरों की आवाज़ आती है। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा कि ये क्या अजीब चक्कर है। मैं आवाज़ें सुनता हूँ तो वो तो अपने कमरों में होती हैं, तो क्या उनको आवाज़ें नहीं आती होंगी, और इसका साफ साफ मतलब यही था कि वो दोनों झूठ बोलती हैं। मैंने सोचा कि मालिक वापस आएगा तो उसे बताऊंगा कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या होता है, क्योंकि मैं तो इन दोनों औरतों से पूछ पूछ कर थक गया था। एक और बात मैंने नोटिस की कि बड़ी मालकिन की अब अक्सर तबीयत ख़राब रहने लगी है और छोटी मालकिन दिन ब दिन निखरती जा रही है। मैंने फैसला कर लिया कि साहब को बताने से पहले मुझे खुद इस राज की जड़ तक पहुंचना होगा, ताकि अगर मालिक कोई सबूत मांगे तो दे सकूं। वो बेचारा तो घर से बाहर काम के सिलसिले में जाता था, उसे क्या मालूम था कि उसकी पीठ पीछे इस घर में क्या चल रहा है। अरबी मालिक हस्बे मामूल हफ्ते के दिन अपना सामान बांधकर काम की गर्ज से दूसरे शहर चले गए। सब मुलाजिम चूंकि यहीं के थे तो शाम को सब अपने अपने घरों को चले जाते थे। वाहिद मैं था जो घर पर रहता था। आज की रात मैं बहुत चौकन्ना था कि मालूम करके रहूंगा कि मालकनों के कमरे से जानवरों की आवाज़ कैसे आती है, क्योंकि मैं खुद गेट बंद करता था तो किसी जानवर के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जैसे ही रात 1 बजने के करीब वो अजीब और खौफनाक सी आवाज़ें आना शुरू हुईं तो मैंने अपने सरहाने से चाबियों का गुच्छा निकाला और दबे कदमों एहतियात से बड़ी मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैं जो ही अंदर गया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सऊदीया में उस दिन मेरा काम करने का पहला दिन था। पढ़ा लिखा तो मैं इतना था नहीं जो कोई अच्छी नौकरी मिलती, इसलिए एक घर में माली का काम मिला तो मैंने गनीमत समझा और इस काम की हामी भर ली, क्योंकि मुझे ये काम आसान लगा था कि बस पौधों को पानी दो और बाकी सारा दिन फारिग। जिस घर में काम करने गया था वहाँ के अरबी मालिक की बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जाने क्यों मुझे वो कुछ अजीब सी लगी थी, क्योंकि उसका ध्यान अपने शौहर की बजाय बाकी हर एक पर होता था। मेरा इंतखाब भी उसी ने किया था। उस अरबी मालिक ने मुझे कहा था कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, अगर मेरी बीवी ने तुम्हें रख लिया ठीक, वरना कोई और काम तलाश कर लेना। मैंने बेगम साहिबा के पास जाने से पहले बहुत दुआएं मांगी कि वो मुझे काम पर रख लें। बेगम साहिबा ने मेरा तवील इंटरव्यू किया। वैसे तो वो अरबी थी, मगर उर्दू तो वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसकी कौमी और मादरी ज़बान यही हो। उसने मुझसे पूछा, यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला था और मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया था ताकि अपनी 3 बहनों की शादी के लिए कमा सकूं और घर पैसे भेज सकूं। मैंने मालकिन से झूठ कहा था कि मैं यहाँ बहनों की शादी के सिलसिले में पैसे इकट्ठे करने आया था, जबकि हकीकत तो ये थी कि मैं घर वालों से तंग आकर आया था। मुझको मोहब्बत भी हुई तो फुप्पो की बेटी जहाँ आरा से। फुप्पो अपने आतिश फिशानी मिजाज की वजह से खानदान भर में मशहूर थी। मैंने अम्मी जानी से साफ साफ कह दिया कि शादी करूंगा तो सिर्फ जहाँ आरा से, वरना कंवारा मर जाऊंगा। बहनों ने सुना तो आसमान सर पर उठा लिया कि भाई ये क्या औल फौल बक रहे हो, जहाँ आरा का मिजाज जानते भी हो, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। लेकिन हम भी अपनी धुन के पक्के थे, टस से मस न हुए। अम्मी और बहनों ने टक्का सा जवाब दिया तो भागम भाग अब्बा मियाँ के पास पहुंचा और मुद्दा बयान किया। अब्बा मियाँ अपनी हमशीरा और भांजी के बारे में खूब जानते थे कि एक शेर है तो दूसरी सवा शेर, लेकिन मुझे फौरन इनकार भी ना कर पाए कि कहीं बरखुरदार दिल के हाथों मजबूर होकर कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दें। अब्बा मियाँ ने कहा, बेटा इन तिलों में तेल नहीं, तुम्हारी फुप्पो लोगों का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। एक बार फंस गए तो ऊंची दुकान फीका पकवान का मायने खूब समझ जाओगे। हम ठहरे सफेद पोश, तुम मुनासिब समझो तो मैं तुम्हारे चाचा के घर बात चलाऊं। तुम्हारे चाचा की बेटी बहुत खूबसूरत है और नेक सीरत भी, मगर मेरे सर पर इश्क का भूत सवार था। मैंने कहा, अब्बा मियाँ जहाँ आरा नहीं तो कोई भी नहीं। इश्क और मुश्क कहाँ छुपाए छुपते हैं। उनकी आन में ये बात जंगल की आग की तरह खानदान में फैल गई। फिर जितने मुंह उतनी बातें, हर कोई भांत भांत की बोली बोल रहा था। अम्मी जानी और अब्बा मियाँ की जान पर बनी हुई थी कि इस नागहानी आफत से कैसे छुटकारा हासिल हो। फूफो तक बात पहुंची तो बोली, ये मुंह और मसूर की दाल, अपनी हीरे जैसी बेटी इस कंगले यानी मुझे कभी न दूं।
जहांरा ने माँ के सामने सदाए एहतजाज बुलंद की और उन्हें मनाने की कोशिश की तो माँ बोली, बेटी दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तुम बस चुपचाप इस इश्क को दिल से निकाल दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। जहांरा को माँ की बात एक आंख न भाई और वो फूट फूट कर रो पड़ी। उधर मुझे फुप्पो के तेवर पता चले तो मेरे औसान खता हो गए और मैं कोई ऐसा तरीका सोचने लगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी फुप्पो भी मान जाती और कोई फसाद भी ना होता। मेरी और जहांरा की कैफियत ऐसी थी कि बस दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, दिल को दिल से राह होती है। जहांरा अपनी दादी के पास गई और सारा हाल बयान कर दिया और साफ कह दिया कि मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। दादी की बात पत्थर पर लकीर समझी जाती थी। फुप्पो ने बहुत तावीलें पेश की, लेकिन 100 सुनार की एक लोहार की के मस्ताक फुप्पो की एक न चलने दी गई। दादी ने कहा, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। दादी का हुक्म ही ऐसा था कि चटमंगनी पटबिया वाला माहौल बन गया। हम खुशी से झूम उठे। मेरे और जहांरा के दिल में भी लड्डू फूट रहे थे। लेकिन शादी के बाद मुझ मासूम को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। जहांरा के बारे में तमाम कयास आराइयाँ सच साबित हुईं। बात का बतंगड़ बनाना और एक की 10 सुनाना जहांरा के बाएं हाथ का खेल था। उसने शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे और मेरे घर वालों को तिगनी का नाच नचा दिया। मेरी अम्मी और बहनें सर जोड़कर बैठीं कि इस गले पड़े ढोल से कैसे निमटा जाए। फिर जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही मेरी मंझली बहन फायजा ने अपनी भाभी जहांरा से टक्कर लेने की हामी भर ली। फायजा और जहांरा बराबर के जोड़ थे। बर्तन धोने, खाना पकाने और घर की सफाइयाँ करने पर मुकाबलाबाजी शुरू हो गई। दोनों डंके की चोट पर खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने पर तुल गईं। फिर घर में वो घुमसान का रन पड़ा कि सब पनाह मांगने लगे। मेरी अम्मी जान अपनी भांजी को बहू बनाने के सपने सजाए बैठी थी। उधर नन की बेटी उनके सीने पर मूंग दल रही थी। ये सूरत हाल देखकर मैं भी सटपटा गया। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। मैंने जहांरा के बारे में सोचा ही नहीं था कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होंगे। अब मरता क्या न करता वाली कैफियत से दो चार हो रहा था। ना तो बीवी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था और ना अम्मी जान मेरी बात पर कान धरती थी, और बहन को कुछ कहना तो भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ था। उधर मेरी बीवी अपने मियाँ को मट्टी का माधु समझती थी, जबकि बहनें और अम्मी जान की नज़र में मैं जोरू का गुलाम था। इस सारे मामले में अब्बा मियाँ ऐसे चुप होकर बैठे थे जैसे ये सब देख देख कर उनको समझ न आ रही हो कि करना क्या है। फटी फटी आंखों से घर का माहौल देखते रहते थे। वो तो खुद हमेशा से अम्मी जान के आगे भीगी बिल्ली बने रहे थे और घर में उनका वजूद ना 3 में ना 13 में वाला था, तो मेरी मदद कैसे करते। मेरी बीवी को जब अपनी पसपाई नजर आने लगी तो उसने फौरन पैंतरा बदला और मेरी बहन के रिश्ते के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी। पहले तो अम्मी जान का माथा ठनका कि ये क्या अनहोनी हो गई है, बहू इतनी अच्छी कैसे हो गई। फिर वो अपने तई मुतमईन हो गई कि शायद इसी बहाने ही सही उनकी बेटी अपने घर की हो जाए। इस सब के बावजूद मेरी बहन की जानिब से अब भी मुसलसल हमले जारी थे। वो मेरी बीवी को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अब्बा मियाँ ज्यादा देर तक आंखें बंद किए ना रह सके और घर के मामलात को पुरानी डगर पर लाने का बेड़ा उठाने का तहैया कर लिया और चुपके से अपनी बहन के पास गए और उसको सारी रुदात सुना डाली। फुप्पो तो कब की भरी बैठी थी। मेरी बीवी उनको गाहे बगाहे हालात से आगाह करती थी। फुप्पो मेरे अब्बा से कहने लगी, जाहिद मियाँ, ये तुम्हारा ही हौसला है जो ज़ैबुन्निसा से निभा रहे हो, और मेरी जबान भी तुम्हारी वजह से बंद है, वरना मेरी बेटी के साथ उस घर में जो सुलूक हो रहा है मैं तो खूब अच्छे से खबर लूँ सबकी, लेकिन भाई और दामाद की मासूम शक्लें आंखों के आगे घूमने लगती हैं। अब्बा मियाँ ने कहा, आपा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों फरीक कसूरवार हैं और ये वक्त हिसाब चुकाने का नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज मरे कल दूसरा दिन, सो आप अपना दिल बड़ा करके कोई मुफाहमत की राह तलाश करें। अगले दिन फुप्पो अपने भाई के घर आन वारिद हुई तो अम्मी जान और मेरी बहन को लगा कि वो लड़ने आई हैं। खुद मुझे भी यही लगा था, लेकिन फुप्पो ने सब घर वालों को इकट्ठा करते हुए कहा कि लड़ाई को जितना बढ़ावा दो ये बढ़ती जाती है। ये काम मैं और ज़ैबुन्निसा भी कर चुके हैं। जब ये ब्याह कर इस घर में आई थी, नतीजा नफरत के सिवा कुछ नहीं मिला, और वक्त गुजरने के बाद हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं रहता। जिस तरह घर औरत के दम से आबाद होते हैं, वैसे ही बर्बादी में भी ज्यादा हाथ औरतों की आपस की चपकलिश का होता है। थोड़े कहे को बहुत समझो और आपस में शेर शुक्र होकर रहो। अम्मी जान, मैं और मेरी बहनें फटी फटी आंखों से फुप्पो का ये खूबसूरत रूप देख रही थी। मेरी बीवी शर्म से पानी पानी हो रही थी कि उसने आते ही महाज क्यों खोल लिया। बहन भी काटो तो लहू नहीं की तस्वीर बनी बैठी थी
कि ईंट का जवाब पत्थर से देना बिल्कुल भी दानिशमंदी का काम नहीं था। अम्मी जान ने उठकर अपनी नन को गले से लगा लिया। मेरी बीवी भी सास से लिपट गई। अब्बा मियाँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर ये नज़ारा देख रहा था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। सच कहते हैं, मीठे बोल में जादू होता है। मिलजुल कर रहने में ही आफियत और इत्तेफाक में बरकत है। फुप्पो अपने तई सारे मामलात निपटा कर अपने घर रवाना हो गई। मैं और अब्बा मियाँ भी मुतमईन हो गए कि अब रावी चैन ही चैन लिखेगा और घर में कोई लड़ाई ना होगी। मगर अगली सुबह मेरी आंख शोर शराबे से खुल गई। जल्दी से उठकर बाहर भागा कि देख सकूं क्या हुआ है। क्या देखा कि किचन में मेरी बीवी और बहन किसी बात पर एक दूसरे से फिर से लड़ रही थीं। मैंने मामला ठंडा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके झगड़े में मेरी आवाज़ कौन सुनता भला। खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गया और थोड़ी देर बाद अपने दोस्त की तरफ निकल गया ताकि उससे मशवरा कर सकूं। दोस्त ने कहा, मैं कुछ लोगों को सऊदीया भेज रहा हूँ, तू भी चला जा। घर के इन लड़ाई झगड़ों से तेरी जान छूट जाएगी। सो यूं मैं हर रोज़ की लड़ाई से तंग आकर यहाँ सऊदीया में आ गया, वरना पैसे तो मैं वहाँ भी ठीक कमा सकता था। अरबी मालकन ने मुझे रखने से पहले ये कहा था कि वैसे तो मेरा काम ये है कि मैंने पौधों को पानी देना है, मगर वो जब चाहे मुझसे और नौयत के काम भी करवा सकती है। अब किस किस्म के काम थे उनकी उसने वजाहत ना की थी और मैंने भी पूछना मुनासिब ना समझा। अगरचे मुझे तजस्सुस था कि माली के अलावा मैं यहाँ और क्या काम करके पैसे कमा सकता हूँ, मगर उस वक्त मैंने पूछना मुनासिब ना समझा और ये सोचा कि मालकन खुद बताएगी जब उसने कोई काम करवाना होगा। तो मैं सारा दिन पौधों को पानी देने के अलावा और भी कई छोटे मोटे काम करता था और रात को वहीं क्वार्टर में सो जाता था। अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती थी और मुझे क्या चाहिए था, सब ठीक जा रहा था। मुझे वहाँ काम करते हुए दूसरा महीना था जब मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे उसका एक काम करना होगा। मैंने चौंक कर पूछा, कैसा काम? मालकिन ने काम बताने से पहले मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे रख दिए और कहा कि तुम्हें अपने साहब पर नज़र रखनी होगी और उसके एक एक लम्हे की रिपोर्ट मुझे देनी होगी। इतने पैसे देखकर मैं लालच में आ गया और कहा, ठीक है मालकिन, जैसा आप कहो। मालकिन ने मुझे कहा, कल से तुम साहब के ड्राइवर होगे और साई की तरह उनके साथ रहना है और मुझे सब कुछ बताना है कि साहब कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। मैंने सोचा मालकिन फजूल में अपने शौहर पर शक कर रही हैं। मालिक तो इतने अच्छे हैं, अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं, भला वो अपनी बीवी को धोखा कैसे दे सकते हैं। ज़रूर मालकिन को कोई गलत फहमी हुई होगी, मगर आने वाले वक्त ने साबित किया कि मेरी सोच गलत थी और मालकिन को अपने शौहर के हवाले से जितने भी खदशात थे वो सच निकले। मुझे अरबी मालिक की गाड़ी चलाते तीसरा दिन था जब मालिक ने गाड़ी एक होटल की तरफ मोड़ने का कहा। मैंने चुपचाप हुक्म की तामील की। मैंने मालिक के अंदर जाते ही मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात बताई। मालकिन ने हुक्म दिया कि उनके पीछे जाओ और उनकी तस्वीर बनाकर लाओ। मैं चोरी चोरी अंदर बढ़ा। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं होटल के अंदर गया तो देखा कि अरबी मालिक एक खूबसूरत सी लड़की के साथ बैठा था, यानी मालकिन का शक बिल्कुल दुरुस्त था। साहब अपनी बीवी को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मैंने जल्दी से उनकी फ़ोटो बनाई और मालकिन को भेज दी। मुझे उम्मीद थी कि आज रात जब हम वापस जाएंगे तो मालकिन साहब से बहुत लड़ेगी और नाराज़ होगी, मगर हैरत के मारे मैं दंग रह गया था जब देखा कि रोज़ की तरह मालकिन ने आज भी मुस्कुराकर अपने शौहर का इस्तकबाल किया। बल्कि उस दिन तो मालकिन ने खाना भी साहब की पसंद का बनवाया था। मैं तो डर ही गया कि कहीं वो अंदर ही अंदर साहब से बदला तो नहीं ले रही, कहीं उसने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया। मगर शुक्र था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो मालकिन का रवैया देख देख कर हैरान हो रहा था कि उसे तो गुस्सा आना चाहिए था कि उसका शौहर उसको धोखा दे रहा है और वो तो ऐसे पुरसुकून थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने बाद में कई बार देखा था कि साहब उस लड़की को लेकर घूमते फिरते हैं और अपनी बीवी को फ़ोन करके कहते हैं कि मैं बिज़नेस मीटिंग में हूँ। पता नहीं मालकिन किस दिन का इंतज़ार कर रही थी। मैंने एक दिन मालकिन को कह दिया कि अगर आपने अपने शौहर को नहीं रोका तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। मालकिन ये सुनकर अजीब तरीके से मुस्कुराई, कहने लगी, करने दो जो करता है, आखिर तो मेरे पास ही आएगा। ये अजीब बात थी कि एक तरफ मालकिन ने मुझे जासूसी पर लगाया हुआ था और दूसरी तरफ बेफिक्र भी थी। बहरहाल मुझे तो दोनों तरफ से पैसे मिल रहे थे। साहब अलग पैसे दे देते थे कि मैं बेगम साहिबा को कुछ न बताऊं। मेरे अरबी मालिक की दूसरी शादी थी और वो ये शादी अपनी पहली बीवी से छुप कर रहे थे और मज़े वाली बात कि मालकिन को ये बात मालूम थी, लेकिन इसके बावजूद वो चुपचाप
बस तमाशा देख रही थी। शादी के बाद दूसरी मालकिन ने शोर मचा दिया कि मुझे घर लेकर चलो। मालिक को मजबूरन उसे घर लेकर आना पड़ा, जहाँ उसकी पहले से ही एक बीवी मौजूद थी। मालकिन ने अपनी सौतन को भी मुस्कुराकर खुशामदीद कहा तो मैं और मालिक तो बेहोश होते होते बचे कि मालकिन ने हंगामा क्यों नहीं किया, मगर ये राज मुझे कभी समझ ना आ सका। मालकिन और छोटी बेगम साहिबा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। साहब को तो नहीं, मगर मुझे बड़ी बेगम साहिबा का पुरसुकून अंदाज बेचैन कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपना घर दो औरतों की लड़ाई की वजह से छोड़कर यहाँ इतनी दूर आया हूँ और यहाँ भी अब सौतनों की लड़ाई देखने को मिलेगी। मगर मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ, क्योंकि मैंने उनमें एक दिन भी लड़ाई होते नहीं देखी थी। सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर अब कुछ दिनों से अजीब मामला चल रहा था कि जिस दिन मालिक घर पर ना होते उस दिन दोनों बीवियों के कमरे से जानवरों की आवाज़ आती। इसी राज को मालूम करने की गर्ज से मैंने घर के कमरों की एक्स्ट्रा चाबियों का गुच्छा अपने कब्जे में कर लिया और इसी चाबी से बड़ी बेगम साहिबा के कमरे में मौजूद था। लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी जान हलक में आ गई। वो जानवरों की आवाज़ नुमा अजीब सी धुन एक टेप रिकॉर्ड से बज रही थी जो मेज़ पर रखा हुआ था, और मालकिन की तरफ देखकर मैं चौंक गया। वो बेड की बजाय नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी और उनके मुंह से सफ़ेद सी झाग निकल रही थी। मैंने जल्दी से वो धुन बंद की और मैडम के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो कुछ देर बाद वो होश में आई। मैंने जब उससे वजह पूछी तो वो कहने लगी, मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने कब ये धुन बजाई और कब मैं सो गई। छोटी मालकिन के कमरे से भी अभी तक वो आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब ये था कि उधर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी। मैं जल्दी से भाग कर गया और छोटी मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर चला गया तो वो भी वैसे ही बेहोश पड़ी थी। उसे भी होश में लाकर मैंने यही पूछा तो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तो बस अपने जहनी सुकून के लिए ये धुन सुन लेती हूँ जिससे मुझे नींद आ जाती है। यही बात बड़ी मालकिन ने भी कही थी कि मुझे इस धुन को सुनकर जहनी सुकून मिलता है। मुझे ये कहानी जहनी सुकून की नहीं कोई और ही लगती थी। दोनों बीवियों ने बताया था कि ये वाली धुन उन्हें उनके शौहर ने कंपोज करके दी थी कि उसे हफ्ते में एक बार ज़रूर सुना करो। यानी इस सब के पीछे साहब का हाथ था। लेकिन साहब को क्यों ज़रूरत पड़ गई कि वो अपनी बीवियों के साथ बुरा करें? मालकिन ने वो धुन एक माहिर नफ्सियात को सुनाई और उसके बारे में पूछा तो बताया गया कि ये धुन किसी भी होशमंद इंसान को पागल करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इससे अगला बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है और उसका दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता पागल हो जाता है। ये जानकर हम तीनों दंग रह गए कि साहब अपनी ही बीवियों को पागल करना चाहता था, मगर क्यों? इस क्यों का जवाब तब मिला जब उसे पुलिस कस्टडी में लिया गया। उसने बताया कि मेरी दोनों बीवियों ने मुझे धोखा दिया। आधी जायदाद तो पहली बीवी पहले ही अपने नाम लगवा चुकी थी, बाकी भी अपने कब्जे में करने के लिए उसने अपनी दोस्त को मेरे पीछे लगवा दिया और मैंने उससे शादी कर ली और बाकी की प्रॉपर्टी दूसरी बीवी के नाम कर दी। ये मुझे शादी के कुछ अरसे बाद पता चला कि ये दोनों मिली हुई थीं। मैंने अपनी दौलत वापस पाने के लिए उनको वो धुन कंपोज करवाकर सुनने के लिए दी, जिसे सुनकर उनके दिमागों को बज़ाहिर सुकून मिलता, मगर अंदर ही अंदर दिमाग कमज़ोर हो जाते और फिर कुछ अरसे बाद ये पागल हो जाती और पागल खाने पहुंच जाती और मेरा सब कुछ मेरे पास वापस आ जाता। साहब को कुछ सालों की सज़ा हो गई। मैं तो घर की साजिशों से तंग आकर यहाँ आया था, मगर यहाँ तो तीनों ही साजिशी निकले। मैं घबरा गया कि कल को मेरे खिलाफ कोई साजिश ना हो जाए। मेरा गुजारा अब यहाँ नामुमकिन था, इसलिए कुछ दिनों बाद मैं टिकट करवाकर पाकिस्तान पहुँच चुका था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।